Okay, welcome to third lecture on this crash course on C programming, and this is our third lecture. And if I just recap, in the last lecture we continued with our variables. uh, let me- we continued with our variables and expressions. Okay, fine. So anybody has any question regarding this before we go, before we proceed further? Yes. Anybody having any questions? No, sir. Okay, fine. So today what we are going to do is we are going to do something called as conditional statements. Now, if you remember, the first day I told you that the computer system, the CPU, has two main parts: control unit and this ALE, arithmetic and logic unit. And this arithmetic and logic unit, this allows us to do arithmetic and logical operations. There are certain other operations also that are possible, but anyways, these are the broad bigger operations. Now, to do arithmetic operations, we have operators in C like plus, minus. Fine. So these are binary plus and binary minus. So maybe I can explain things. So there are different classification of operators. Operator को बहुत तरीके से आप classify कर सकते हो. So one classification is based on number of operands an operator takes. Fine. Now, based on this, there are at least three types of operators. One are unary operators. Okay. Unary operators. Unary operators are, for example, we have plus operator and minus operator. So if you append a minus in front of some number, that will make that number as a negative number. So for example, if we have some variable, let us say integer x equal to 3, then if you say x equal to minus x, then x will take whatever is in x and multiply it with minus 1, so it will become minus 3. Fine. Similarly, plus will make it plus, doesn't have that much of a difference. And then we have like plus plus increment operator and minus ones as a decrement operator. Now what this plus plus does, so if I do, for example, x plus plus, now this means x is equal to x plus 1. Okay, which implies x will then contain, so if I remove this one, x will contain 4. Similarly, if I do x minus minus, then that is equivalent to saying x equal to x minus 1. That means x will be equal to then 3. Fine. So these are the unary operators. There are some other unary operators like the star operator, which is the value of operator, or the ampersand operator. These are some unary operators. Then there are some binary operators. Binary operators. So the examples are like, we might have the plus, the binary plus, okay, the binary minus, the binary multiplication operator, the division operator, and maybe the star. These are also the arithmetic operators. Okay, these are arithmetic operators. So you all might be already knowing this. This will do addition, this will do subtraction, this will do multiplication, division, and this will be the modulus. Okay, now the only thing you need to remember regarding this, all will perform this as expected. The only thing is regarding these two operators. Now division operator, so this is the important thing. So please pay attention. So the important thing here is that if you are using the division operator, so this is the important thing. If you are using the division operator, so for example, let me say I have two variables
I have a variable x which is containing 3. Okay. If I define another variable, let us say y, and I say x divided by, let us say 4. Okay. Now, since this is also an integer, this one is also an integer, so this will be called as integer division. Integer division. Now, what happens in integer division is, so it will do the following. X is equal to 3. We divide it by 4. 4 does not divide 3, so we multiply it with 0. So this will be 4, 0, 0. This will be 3. So the quotient here is now, quotient here is 0, and the remainder is equal to 3. So this will basically return 0. Okay. Or in other words, if you want to understand it even bit better, what it will do is, it will give us, then there will be a point, 0, 4 8s are, or 4 7s are 28, then 20, then 0, 4 5s are, so this, the result is 0.75. However, whatever will be after this stop, this point, that will be omitted, so the result here will be 0. ये बात सबको समझ आई? इंटीजर डिवीजन क्या होता है? इंटीजर डिवीजन में जो भी पॉइंट के बाद आपको मिलेगा वो डिस्कार्ड किया जाएगा, उसको नहीं लाया जाएगा. फाइन. However, if I do something like y is equal to x divided by 4.0, okay, now one of the two things is a real number. Okay, one of the two is a real number, therefore the result will also be a real number. तो यहाँ पे result क्या निकलेगा? 0.75. However, जब ये 0.75 आप y में डालोगे, because y is only integer, तो उसमें again अब इस integer decimal part को discard किया जाएगा और y will only contain 0. ये बात सबको समझ आई? Is this clear to everybody? Maybe I can show you an example to make things clear. Now, let me go back to my GDB. Okay. If अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है, please ask it at that point of time only. Okay. तो अभी मैं क्या करूंगा? Let me declare a variable integer x is equal to 3. Okay, fine. या 3 के बजाय let me say 33. Now, एक चीज मैं कर सकता हूं, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं print f %d comma, and I say x divided by, let us say 10. Okay. Now अब क्या होगा? ये यहाँ पे printf देखेगा. printf कह रहा है इसको एक डेसिमल नंबर आपको प्रिंट कराना है, and then it will do this thing. Now since x is also a decimal, 10 is also a decimal, तो यहाँ पे कौन सा वाला डिवीजन होगा? इंटीजर, सॉरी, x is also integer, 10 is also integer, तो यहाँ पे होगा इंटीजर डिवीजन. So x is equal to 33. 33 divided by 10, तो वहां से quotient क्या निकलेगा? 3 निकलेगा. So the result will only be 3. So let's try to run it. So if you see here, यहाँ पे result हमारा क्या निकला? 3. बात सबको समझ आई? Clear to everybody? अब इसके बदले अगर मैं कहूं इस तरह, अगर मैं ये कहूं कि x divided by 10.0, अब ये 10.0 क्या है? इंटीजर टाइप है, सॉरी रियल नंबर है, और यहां से हमारा इंटीजर टाइप है, तो रियल नंबर इंटीजर से ज्यादा प्रेफरेंस लेता है, तो ये डिवीजन हो जाएगा. फाइन. तो ये डिवीजन हो जाएगा और वहां से हमें क्या मिलेगा? एक फ्लोट नंबर मिलेगा. ओके. तो यहाँ पे इस वक्त अब 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा. सो इफ यू सी हियर, सो इट विल बी 3.300000. इज दिस क्लियर? बात सबको समझ आई ना? नाउ अगर मैं अब इस तरह करूं, मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करूं, y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 10 करूं मैं, एंड देन आई प्रिंट दैट y.
ओके, आई प्रिंट दैट y नाउ। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गई, 10.0 भी करता हूँ। अब यहाँ से तो जो राइट हैंड साइड है वो मुझे 3.30 दे देगा। However, when I put that inside y, क्योंकि y only integer type है, तो उसमें again वो पॉइंट वाला पार्ट गिर जाएगा। So if I now run it, so you can see यहाँ से मुझे खाली वैल्यू निकलेगा 3। ये सबको समझ आई ये बात? ओके, किसी को कोई डाउट तो नहीं रहा? हेलो, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Yes, sir. Now इसी तरह का एक और ऑपरेटर है हमारा डिवीजन ऑपरेटर, सॉरी मॉड्यूलस ऑपरेटर। Now modulus operator क्या करता है, if you have two integers, let me again take x equal to 33, and if you want to get a remainder, okay, तो उस वक्त आप परसेंट साइन यूज करोगे, that will give you the remainder. So for example, if I say integer y is equal to x and then I say modulus of, let's say divided by 2, okay, तो यहाँ से मुझे रिमाइंडर 1 निकलना चाहिए। So if I print it now, printf %d comma y, okay, so if I run it now, so the remainder is 1, okay. However, it is very necessary that both these operators should be integer only. So if I for example try to do x modulus 2.0, it will throw an error. Fine, so it's an invalid operands to binary %, because binary is expecting both of the operands as integers. ये बात सबको समझ आई? Yes, sir. Okay, fine. So let's go back now. भाई सर मुझे बताइए ये डिवीजन फिर कहाँ पे यूज होता है, डिवीजन ऑपरेटर? डिवीजन आप इंटीजर में भी कोएफिशिएंट निकालने के लिए कर सकते हो, और अगर रियल नंबर्स है तो उसमें पूरा पॉइंट के हिसाब से भी आप निकाल सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। एक से आपको कोशेंट निकलेगा और दूसरे से खाली रिमाइंडर निकलेगा। अब जब रिमाइंडर आप निकालोगे, रिमाइंडर आप तभी निकालते हो जब इंटीजर वाला यूज करते हो आप, है ना? फाइन, तो ये कुछ हमारे ऑपरेटर्स हैं, दीज आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। लेकिन हम खाली इतना ही नहीं करते हैं, वी आल्सो डू अदर टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस व्हिच आर कॉल्ड एज द लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होता है? और अनदर टाइप ऑफ ऑपरेशंस आर कंपैरिजन ऑपरेटर्स। Okay, you want to compare things. So for example, you want to say if 10 is greater than 20 or not, is fine. So यहाँ पे आप इसका देखते हो, ये टेस्ट आपको करना है। Similarly, आपको देखना है कि 20 greater than or equal to 5 है या नहीं है, ठीक है? So all of these will evaluate to either yes or no. So this will evaluate to either yes or no. Now the question is, ये वाली चीज आप कैसे कर पाओगे? तो इसके लिए भी हमारे पास ऑपरेटर्स है which are called as relational operators. क्या है? Relational operators. Now those are the following: one is greater than, less than, greater than, equal to, less than, equal to, comparison operator, and not operator. Okay. Now what happens is that, so let me take an example. So for example, if I define an integer x equal to, let us say 3, fine. Now if I do the following, if I say I say integer y is equal to x greater than 2, okay, fine, so समझ आया? Now this greater than is a binary operator that takes 2 operands on either side, and if the left hand side operator is greater than the right hand side operator, this will evaluate to yes, and yes is written in C as 1, and if it is not, then it will evaluate to 0. बात समझ में आई सबको? Yes, sir. तो based on that, इस y का वैल्यू either 0 आएगा या 1 आएगा। Okay, so let me show you that thing. बस ये मैं दिखाता हूँ आपको, and how we use these things I will tell you that in a moment, huh? तो for example, ये हमारे पास
x equal to 33 है, I say if x is greater than let's say 2, okay, and then I display this y. So if I run it now because x is greater than 22, greater than 2, so it return 1. Let me set 200. Now because now 33 is not greater than 200, so it should return what? 0. So y should then contain 0. So if I run it, y should contain 0. Is this clear to everybody? Yes, sir. Similarly, the other operators will work. Similarly, we have other operators like this: greater than, less than, greater than, equal to, less than, equal to. This comparison operator. Comparison operator will compare two numbers if they are same or not. So if, for example, I say x equal to 3. So this will evaluate to either 0 or 1 based on whether x is equal to 3 or not. The value of x is the same as that of 3 or not. And similarly, the opposite one is not equal to. Okay. This is note of exclamation and followed by an equal to sign. Now, if I do x not equal to 3, this will return 1 if x is not equal to 3, and this will return 0 if x is equal to 3. Just the opposite of this thing. बात समझ में आई? Good. Now the question is, ये तो समझ आया हमें 0 है या 1 है, निकल गया कि हमने कुछ एक्सप्रेशंस की, लेकिन अब मसला ये है कि इसको हम यूज कैसे कर लें. So let me give you an example. Fine. तो एग्जाम्पल ये है कि मैं दो नंबर लेता हूं x एंड y. अब मुझे ये देखना है कि या मैं एक नंबर ले रहा हूं यूजर से x, उसको मैं x में स्टोर कर रहा हूं. अगर वो नंबर let's assume that number assumes it's an age. Fine. आपने देखा होगा कि कुछ साइट्स होती है जो एडल्ट साइट्स होती है, हाँ, तो उनमें एज रेस्ट्रिक्शन होती है क्योंकि कुछ वायलेंस टाइप का मटेरियल होगा या कुछ और एडल्ट मटेरियल होगा जो हम नहीं चाहते कि बच्चे देखें. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको उसके प्रोग्राम लिखना है कि आप यूजर से एज मांगोगे, अगर वो एज लेट अस से लेस देन 18 इयर्स है, तो आप उस कंटेंट को नहीं दिखाओगे. उसको आप फॉर एग्जाम्पल मैसेज डिस्प्ले करोगे, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू विजिट द पेज. हाँ, ऑथराइज्ड टू विजिट द पेज. और अगर वो ग्रेटर देन हुआ तो फिर आगे चलेंगे. फाइन. फॉर एग्जाम्पल आप मैसेज उसमें लिखोगे वेलकम या समथिंग अदर. तो ये वाला हम कैसे करेंगे? ठीक है, बात समझ में आई? ओके. तो ये हम इस तरह कर सकते हैं. इसके लिए हमारे पास सी में एक टेक्निक, एक टाइप का स्टेटमेंट है, उसको कहते हैं इफ स्टेटमेंट. ठीक है, क्या कहते हैं? इफ. अब इसका सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स जब मैं कहूँ तो उसका मतलब यह है कि लिखने का तरीका क्या है. इसके लिखने का तरीका है, हम लिखते हैं इफ, फिर ये पैरेंथेसिस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और इसके बीच में हम ये कंडीशन लिखते हैं. ठीक है. नाउ कंडीशन वो होगी जो इट विल आइदर इवैल्यूएट टू आइदर 0 और 1. बात समझ में आई? जिस तरह ऊपर हमने ये लिखे थे ना, x इक्वल टू 3, x नॉट इक्वल टू 3, x ग्रेटर देन 2, दिस टाइप ऑफ कंडीशन जो आइदर इवैल्यूएट टू 0 और 1. ठीक है. उसके बाद हम इसके नीचे ब्रेस लगाते हैं, जैसे हमने मेल ब्रेस लगाते हैं. तो यहाँ पे हम वो स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो हमें इस कंडीशन के बाद करनी है. बात समझ में आई? फाइन. तो ये आप इसकी मैं एग्जांपल दे सकता हूँ. फॉर एग्जांपल हम एक जो है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c. इसके रूट्स किसके बराबर होते हैं, या उसके रूट से पहले इसका अगर हमें देखना है कि इसके रूट्स रियल है या नॉट इमेजिनरी है, तो वो कैसे हम देखते हैं? हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, d = b² - 4ac. निकाला ये. नाउ अब हम देखेंगे अगर d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो रियल रूट्स हैं, अदरवाइज इमेजिनरी रूट्स हैं. तो रियल निकालने की एक फार्मूला है और इमेजिनरी रूट्स निकालने की एक और फार्मूला है. तो मतलब है तो हमें दो अलग टाइप के कोड लिखने हैं अब, है ना? या तो हमें उधर जाना है या तो हमें इधर जाना है. तो इस तरीके की सिचुएशन जब होगी तो उस वक्त आप इफ कंडीशन यूज कर सकते हैं. तो अगर कंडीशन ट्रू हुई, अगर एक कंडीशन जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं अगर वो ट्रू हुई, तो नीचे वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे.
ठीक है, आप इतना भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास दो कंडीशन, या ये करो या ये करो, तब आप नीचे इसको एल्स रख सकते हो, एल्स, और फिर इसकी ब्रेस और इसकी क्लोजिंग ब्रेस, और एल्स में आप वो लिखोगे जो अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो उस वक्त फिर ये वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। बात सबको समझ आ रही है? फाइन, गुड। तो अब जो मैंने ऊपर प्रोग्राम बोला था कि हम एज ले लेंगे, तो वो हम इस तरह करेंगे। सो लेट मी से, मैं वही फिर से करूंगा, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हाँ, फिर वाइड मेन, तो फिर उसके बाद में एक इंटीजर लूंगा एज, हाँ, फिर मैं एक मैसेज लिखूंगा प्रिंट एफ एंटर योर एज, हाँ, उसके बाद में स्कैन एफ करूंगा %d कामा एम्परसेंड ऑफ एज, हाँ। अब मैं चेक करूंगा अगर एज ग्रेटर देन, इफ एज इज ग्रेटर देन 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 13, तो उसके बाद में प्रिंट कराऊंगा। सो आई विल यूज प्रिंट एफ। ये अच्छी प्रैक्टिस है कि आप इंडेंटेशन यूज करो। इंडेंटेशन का मतलब ये है कि आप ये इसके अंदर वाले स्टेटमेंट्स है ना, थोड़ा एक स्पेस डाल के राइट हैंड साइड में लिखो, ताकि पता चल पाए कि ये इसके अंदर है। क्योंकि जब एरर वगैरह आता है तो फिर अगर आप एक ही लाइन में लिखोगे तो वो निकालना मुश्किल होगा। तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप इंडेंटेशन यूज किया करो, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा इधर लिखोगे आप, इस वाले इंडेंट पे, हाँ। सो प्रिंट एफ ऐसे वेलकम, हाँ, और अदरवाइज मैं लिखूंगा एल्स प्रिंट एफ यू आर नॉट ऑथराइज्ड, ओके, इस तरीके की। एंड देन एंड ऑफ दिस, अब ये इफ खत्म हो गया और फिर मैं मेन को खत्म करूंगा। अब आप देखिए होगा क्या। सबसे पहले प्रोग्राम यहां से स्टार्ट होगा, वाइड में यहाँ पे आ जाएगा इंटीजर एज। इंटीजर जब एज बन गए तो एक वेरिएबल बन जाएगा, उसका नाम रहेगा एज। एज एक वेरिएबल बन, उसके बाद ये स्क्रीन पे लिखेगा एंटर योर एज, तो लिखा है इसने एंटर योर एज। फिर स्कैन एफ, अब ये मुझसे मांगेगा, अब मैं यहाँ से कुछ दे दूंगा, कोई इंटीजर लेट से मैंने 32 दे दिया, हाँ, तो वो 32 किस में चला गया, एज में। फाइन, तो मैं यहाँ पे 32 लिखूंगा, जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो वो चला जाएगा किसमें, एज में। उसके बाद अभी यहाँ पे आ जाएगा, अब ये देखेगा इफ एज इज ग्रेटर देन 18, एज में क्या है 32, इज ग्रेटर देन 18 इज, सॉरी 32 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, यस इट इज, तो ये नीचे चला जाएगा, हाँ। तो ये लिखेगा प्रिंट एफ वेलकम, तो इसने वेलकम लिखा। एंड देन अब ये एल्स में नहीं जाएगा क्योंकि दोनों में से एक ही में चला जाएगा, और फाइनली ये यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर लेटर से एज के बजाय मैंने 12 दे दिया, तो 32 में यहाँ पे 32 के बजाय मैंने 12 दे दिया, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अभी देखा इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, तो ये 12 ग्रेटर देन 18 है या नहीं, नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये सीधा चला जाएगा एल्स में, ठीक है। तो ये ट्रू नहीं हुई तो एल्स में जो होगा जो वही एग्जीक्यूट होगा, तो ये लिखेगा यू आर नॉट ऑथराइज्ड। बात समझ में आई सबको? Yes, sir. ठीक है, सो लेट मी ट्राई टू रन दिस, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक। सो लेट मी go back to, so let us try to this. So integer age, okay, now अब मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा print f %d और यहाँ लिखूंगा print f enter your age, okay, और उसको मैं डालूंगा किसमें, एज वेरिएबल में, so %d कामा एम्परसेंड ऑफ एज, हाँ। उसके बाद में इफ करूंगा, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, ठीक है, तो मैं लिखूंगा प्रिंट एफ। यहाँ पे देख रहे हो ना, ये थोड़ा इंडेंट करके ऑटोमेटिकली आ गया। इससे पता चल जाता है कि अच्छा ये वाली इसकी बॉडी है, इफ की बॉडी ये है और दूसरे की बॉडी वो है, तो एरर निकालना आसान हो जाता है और पढ़ना भी आसान हो जाता है। तो मैं लिखूंगा वेलकम, वेलकम, ठीक है। और अगर ये ट्रू नहीं हुआ देन आई विल से एल्स
और यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट एफ यू आर नॉट authorized. Okay, so end of statement, return 0. Now if I run this, ठीक है, तो ये दिखाएगा, मुझे कहेगा enter your age, मैं कहूँगा 45, तो कहेगा वेलकम. ठीक है, मैं फिर से इसको रन करूंगा. if I give let us say 12, मैं 12 दे दूंगा, क्योंकि ये 12 12 दो हो गए, 1 12 12 आ गए, इसमें मैं एक बार खाली 12 दूंगा. so wait for 12, एंटर, तो ये कहेगा यू आर नॉट ऑथराइज्ड. ठीक है, अब एक तरीका है आपको समझाने का, वो मैं आपको थोड़ा दिखा दूं. समथिंग कॉल्ड एज डिबगर. ठीक है, अगर आपको पता नहीं चल रहा है, कभी कभार आपके प्रोग्राम में एरर आ रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है कि कहाँ क्या एरर आ रहा है, या अगर आपका प्रोग्राम चल रहा है लेकिन आप जिस तरह उसका रिजल्ट चाहते हो वैसा रिजल्ट नहीं आता है, तो उस वक्त हम डिबगिंग करते हैं. क्या करते हैं? डिबगिंग. ना डिबगिंग से क्या होता है, आप स्टेटमेंट्स को एक एक करके चलाते हैं. ओके, तो उसमें हम क्या करेंगे, वी कैन ऐड सर्टेन, जो है हम कुछ लाइंस पे हम ट्रैक करते हैं. हम कहते हैं कि अच्छा जब आप इस लाइन पे पहुंचो तो रुकना वहां पे. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे, उसके लिए हम यूज करते हैं ए टूल कॉल्ड एज GDB. ठीक है, आपके जो ब्लड शेड है या कोड ब्लॉक्स है उसमें भी ये फैसिलिटी है, वहां पे आप यूज कर सकते हो. ठीक है, आई डोंट रिमेम्बर अभी ये कैसे एज GDB, मे बी आई कैन शो यू इट लेटर ऑन. अभी आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे इस पे. ठीक है, ये बात समझ में आई? so we can, you can do this. I will show you it another time because थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको anyways. फाइन, तो ये बात समझ में आपको आई? नाउ अगर 3 कंडीशंस होंगी, ये तो हो गए अगर आपके पास 2 ही कंडीशंस हैं, है ना. कभी कभार 3 कंडीशंस हो सकती है. तो फॉर एग्जांपल आपका प्रोग्राम अगर इस तरह है जैसे मैंने अभी बताया आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं, सो लेट मी डू दैट. ठीक है, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हाँ, तो रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होते हैं? सो फॉर एनी quadratic equation can be written as ax square plus bx plus c equal to 0. तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, b square minus 4ac. उसके बाद अगर, तो हमारे पास रूट्स जो होते हैं r1 r2. ठीक है, r1, या हमें अगर देखना है कि रियल है, अनरियल है या इक्वल है, 3 ही कंडीशंस है ना. सो हमारे रूट्स कैन बी रियल, इमेजिनरी और इक्वल. रियल एंड इक्वल. हाँ, रियल एंड इक्वल, यही है ना. तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं. तो हम देखेंगे इफ d इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, अगर 0 से बड़ा है तो रियल है, रियल एंड डिस्टिंक्ट. अगर d इक्वल टू 0 है तो क्या है, रियल एंड इक्वल. otherwise is equivalent to saying d is less than 0, तो क्या है, इमेजिनरी है. यही है ना. तो ये वाला हम कैसे करेंगे, एज्यूम कि हमने ऊपर वो सारा प्रोग्राम लिख रखा है, अब मैं वो बार बार नहीं लिखूंगा. ठीक है, तो मैं वहां से स्टार्ट करता हूं कि जब हमने फॉर एग्जांपल ए बी और सी यूजर से लिया है. ठीक है, उसके लिए आप लिखोगे प्रिंट एफ एंटर ए बी एंड सी, और उसको स्कैन अप करोगे, स्कैन एफ %d comma ampersand of a ampersand of b ampersand of c. फाइन. एंड नाउ उसके बाद अब आप लिखोगे इफ, या उससे पहले हम d को कैलकुलेट करेंगे. सो विल से d इज इक्वल टू b स्क्वायर, तो b क्रॉस b माइनस. ठीक है, अब इस तरह करेंगे 4 स्टार a स्टार c. ओके, बात समझ में आई? नाउ फिर उसके बाद हम कहेंगे इफ d इज ग्रेटर देन 0. अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो हम कहेंगे प्रिंट एफ रूट्स
are real and distinct. ओके, अब दूसरी कंडीशन कैसे लिखेंगे, उस लिखा था एल्स में, लेकिन अब हमें दूसरी कंडीशन भी दे, तो मैं लिखूंगा एल्स इफ. ओके, एल्स के बाद स्पेस फिर इफ. अब मैं दूसरी कंडीशन लिखूंगा, इफ डी इक्वल टू 0. अगर ये कंडीशन हुई तो प्रिंट एफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल. बात समझ में आ रही है? एंड देन फाइनली अगर एक और हुई तो फिर से लिखूंगा ए एल्स इफ. अगर लास्ट में तीसरी कंडीशन है, आखिरी कंडीशन है, तो उसके मुझे एल्स इफ लिखने की जरूरत, मैं लिख भी सकता हूं, मैं नहीं भी लिख सकता हूं. तो एल्स प्रिंट एफ, ये वाला स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होगा जब ना ये चलेगा ना ये चलेगा, कोई भी ऊपर वाला नहीं चलेगा, फाइनली ये वाला चलेगा. ठीक है, प्रिंट एफ रूट्स आर इमेजिनरी. बात समझ में आई? एंड देन फाइनली आई विल एंड द मेन प्रोग्राम. सो लेट मी टेक यू बैक टू OpenJDB. अगर सी में 4 स्टेटमेंट्स होंगे तो एल्स इफ एक और लिखोगे आप, एल्स इफ, फिर ये इस तरह जितने भी होंगे उसको एल्स इफ करते जाइए. ठीक है, इसको क्या हम कहते हैं, एल्स इफ लैडर. इफ एल्स इफ ये एक सीढ़ी जैसी है, या तो उस स्टेप पे या उस स्टेप पे या उस स्टेप पे, उनमें से एक ये, लेकिन ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे. बात समझ में आ रही? सर हाँ. कहीं पे 2 एलिजिबल होंगे तो वहां पे प्रायोरिटी कौन से वाले को दी जाएगी? 2 एलिजिबल होंगे तो प्रायोरिटी कैसे होंगे, 2 पे कैसे आप एलिजिबल कर पाओगे, जरा मुझे एक एग्जांपल दे दीजिए. सर ये एग्जॉस्टिव है म्यूचुअली? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए. अच्छा ओके सर, फिर नहीं होगा. ठीक है. Yes. तो फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा, तो लेट मी गो बैक एंड मैं प्रोग्राम लिखने की कोशिश करता हूं. अच्छा, ये मैंने अब इस पे अभी देखा होगा कि मैंने ब्रेसेस नहीं रखे. तो अगर इफ के बाद या एल्स के बाद या इफ एल्स के बाद एक ही स्टेटमेंट होगा तब ये ब्रेस लगाना जरूरी नहीं है. ठीक है, लेकिन अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट होंगे तब ब्रेस लगाना जरूरी है. बात समझ में आई? तो यहाँ पे ये मैंडेटरी नहीं है, अब क्योंकि एक ही स्टेटमेंट इसके अंदर, तो मैं इसको हटा सकता हूं. ठीक, ये चल जाएगा. सो इफ आई रन इट, ये चल जाएगा. ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. एनीवेज, अब हम अपना प्रोग्राम करते हैं. सो मैं 3 इंटीजर्स डिफाइन करूंगा, A, B एंड C, और एक और वेरिएबल में डिस्क्रिमिनेट के लिए करूंगा, लेकिन उसको मैं फ्लोट बना दूंगा. ठीक है, फ्लोट D. ओके, अब मैं कहूंगा प्रिंट एफ एंटर A, B एंड C. वैसे फ्लोट की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो उसमें मेरे ख्याल से, हाँ, उस फ्लोट की जरूरत नहीं, इंटीजर ही रह सकता है वो, इंटीजर. SCAN scanf %D comma ampersand of A, ampersand of B, ampersand of C and. अब मैं D को कैलकुलेट करूंगा, D is equal to B cross B and then minus 4 times A times C. ओके, अब जो है मैं if करूंगा यूज, if D is greater than 0. ओके, if D is greater than 0, तो मैं लिखूंगा प्रिंट एफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल. फाइन. तो एल्स इफ दूसरी कंडीशन, हाँ, D is equal to 0, तो मैं कहूंगा प्रिंट एफ रूट्स आर, sorry, these are image distinct. Sorry. Roots are real and equal. And finally, अगर ये भी सही नहीं हुआ तो मैं कहूंगा else printf
roots are imaginary. Fine. Now if I run this, you see मैं कोई सी क्या हुआ इसमें, अच्छा इसको मैंने एंड ऑफ स्टेटमेंट देना है, इक्वेशन कर लूंगा. सो लेट से x प्लस 2 होल स्क्वायर क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 है ना. तो a में 1 दूंगा, b विल बी b will be 2 and c will be 4. तो ये कहेगा रूट्स आर इमेजिनरी. ये सही आया? मे बी वी कैन चेक. हाँ, सो लेट मी ट्राई टू डू दैट, annotate. So मेरे पास है x, मैंने दिया a is equal to 1, b is equal to 2 और c मैंने दिया 4. So b square 4 minus 4ac, so this will be imaginary क्योंकि दूसरा वो ये आता है. ठीक है, तो मे बी मैं कैन डू समथिंग, लेट अस से इसको a को देने a में दूंगा. फाइन, लेट मी ट्राई अगेन. Let me have a as 6 and this as 2 and c as 2. So again b roots are imaginary, b square minus 4ac. So let me give 36. 36, 2 and 2. Again roots are imaginary. Why is b square? Oh, sorry. So b I have to give bigger. Sorry. So let me give it as 1. We give it as 4 and c as 1. So roots are real and distinct. ये बात सबको समझ आई? Yes, sir. ना अभी जो आप बात कह रहे थे कि दो अगर सेम होगा, तो अगर मैं इस तरह दूं, क्योंकि अगर दोनों रूट इक्वल हैं तो ये वाली कंडीशन भी ट्रू होगी, ये वाली कंडीशन भी ट्रू होगी. यही आप कह रहे थे ना? Yes, sir. लेट्स ट्राई टू फाइंड दिस कंडीशन. कौन सी वाली इक्वेशन ऐसी होगी जिसमें रूट्स इक्वल होंगे? सो लेट्स से x इक्वल टू 2 है ना, तो x माइनस 2 होल स्क्वायर, दिस विल बी x स्क्वायर माइनस 2x है ना, नहीं 4x, x स्क्वायर माइनस 4x, सॉरी Square minus 4x square. हाँ, X square minus 4x plus x स्क्वायर माइनस b का वैल्यू 2 देना है, a और c का 1 1 x स्क्वायर होगा ना. तो a हमें 1 देना है, b हमें देना है -4 और c देना है 4. ठीक, लेट्स ट्राई टू डू दिस नाउ. सो इफ आई रन इट सर b नाउ, 2 देंगे ओपन, b कैसे 2? ये है ना a वो फिर 1 1 माइनस देंगे ट्वाइस सर, a और ax c. प्लस b स्क्वायर, वही तो हुआ ना, माइनस ट्वाइस ax होगा ना, ट्वाइस a. यस सर, यस. अच्छा a 2x ही है शायद यहाँ पे. अरे a प्लस b का होल स्क्वायर किसके बराबर है? a plus b का whole square. Sir, a square square plus 2ab minus plus b का होल स्क्वायर. This is equal to a square plus b square minus माइनस 5. 2. यही है ना. यस सर. तो जो हमने दिया था अभी x minus 2, तो twice x and b is 2. हाँ, तो ये 2 आएगा यहाँ पे. Sir, but 2 नहीं, into 2 2. to 4, हाँ 4 आएगा. 4 ही सर. सर ये 4 ही ठीक. आएगा, 4 ही आएगा, 4 ही आएगा. So this will be 4x. So let me try this out. हाँ, तो 1, ये जो हमारा ये बनता है, a के बदले हमें देना है 1 है ना, 1. b के बदले हम देंगे अब क्या, -4 और c के बदले हम देंगे 4. ठीक है, तो ये दिखा रहा है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. तो इसने पहली वाली ही कंडीशन ट्रू होगी तो ये पहली वाली पे ही आगे और बाकी कोई एग्जीक्यूट नहीं होगा. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो. अब अगर मैं उल्टा करूं, ठीक है, तो मैं इस कंडीशन को उठाता हूं, इसको मैं इससे पहले डाल देता हूं. ठीक, यहाँ पे कंट्रोल V और ये एल्स को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, इस एल्स को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ. अब देखिए आप,
क्योंकि अब पहली वाली कंडीशन कौन है 0 0, तो ये पहली वाली एग्जीक्यूट करेगा, बाकी किसी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू डू दैट। सो 1 कि दूसरा क्या था -4 एंड 4, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, क्योंकि इसने पहली वाली कंडीशन पहले ही ट्रू हो गई, ये वाला एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद ये बाहर निकल जाएगा, उसके बाद आगे वाले कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। सबको समझ आई बात? Yes. कोई किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हाँ सर। ओके फाइन। सो कैन यू नाउ डू दीज थिंग्स? ऐसे वाले प्रोग्राम्स अब आप कर सकते हो। ठीक है, तो वन मोर थिंग आई वांट टू मेंशन इज दैट, अब ये फॉर एग्जांपल हम इसी प्रोग्राम को दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। ठीक है, तो लेट मी गिव यू अनदर पर्सपेक्टिव, क्योंकि मुझे उससे एक दूसरी बात आपको समझानी है। इस प्रोग्राम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है ना, तो उसके आगे फिर 2 केस, फिर अगर d इक्वल टू 0 हुआ तो रियल एंड इक्वल है, अदरवाइज रियल एंड डिस्टिंक्ट है ना। एल्स यहाँ पे रियल इमेजिनरी है। इस तरह भी तो कर सकते हैं हम, एल्स ही, लेकिन इस इफ के अंदर फिर हमें फिर से और देखना है कि कौन सी वाली हमें यूज कर। ठीक है, बात समझ में आई? सो वी कैन डू समथिंग लाइक दिस। हम कह सकते हैं इफ d इज लेस देन 0, तो सीधा हम लिखेंगे प्रिंट f रूट्स आर इमेजिनरी। हाँ, एल्स सिंपल, क्योंकि 2 ही चीजें हो सकती है, या तो लेस देन 0 है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो मतलब रूट्स जो है इमेजिनरी नहीं है, रियल है। लेकिन अब उसके आगे तो हम यहाँ पे एक ब्रेस लगाएंगे, क्योंकि आप बहुत सारे स्टेटमेंट्स, तो इस एल्स के अंदर खुद का इफ हो सकता है। एल्स के अंदर आपको कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, इसी तरह इफ के एल्स भी आप कुछ भी डाल सकते हो, बॉडी में कुछ भी हो सकता है। दैट इज एक्चुअली व्हाट आई मीन टू से। फाइन, तो मैं यहाँ पे फिर से एक और इफ एल्स लगा सकता हूँ। इफ d इज इक्वल टू 0, तो मैं कहूंगा प्रिंट f रूट्स आर इक्वल, या मैं कहूंगा रूट्स आर, या मैं इस तरह भी कर सकता हूं, मैं यहाँ पे ही पहले ही एक प्रिंट एफ लिख दूंगा, रूट्स आर रियल, और यहाँ पे मैं खाली लिख दूंगा, अगर रियल तो है ही तो मैं लिखूंगा एंड इक्वल, एल्स मैं कहूंगा प्रिंट एफ एंड डिस्टिंक्ट, इस तरह। तो ये फिर यहाँ पे मैं इस एल्स को क्लोज करूंगा। बात समझ में आई किसी को? लेट्स ट्राई टू डू एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या होगा। लेट मी स्विच बैक टू, किसी को कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? तो ये वाला आप थोड़ा सा एंड का रिपीट कीजिए। हाँ, मैं कर दूंगा, मैं अभी लिख रहा हूँ, उसके बाद हम इसको समझेंगे। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू डू दिस थिंग। सो आई विल डू दिस थिंग। मैं कहूंगा इफ d इज लेस देन 0, अगर d लेस देन 0 है तो मतलब क्या हुआ, इमेजिनरी है, उसके बाद कुछ नहीं। इमेजिनरी में हम इक्वल या डिस्टिंक्ट नहीं दे सकते। हाँ, तो मैं कहेंगे सीधा रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक, एल्स अगर इमेजिनरी नहीं है तो आगे फिर कितनी कंडीशंस हैं? 2 कंडीशंस है ना। रियल तो है, तो एल्स में हम सबसे पहले कहेंगे कि रियल है, तो मैं कहूंगा रूट्स, मैं कहूंगा रूट्स आर रियल। हाँ, अब आगे डिस्टिंक्ट है या इक्वल है। ठीक है, उसके लिए मैं फिर से चेक करूंगा, मैं कहूंगा इफ d इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जाके मैं कहूंगा प्रिंट f एंड इक्वल। अदरवाइज अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो मैं कहूंगा एल्स प्रिंट f एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, अब देखिए इसको मैं रन करता हूं, देखिए होगा क्या।
हम देंगे यही पहले जो हमने अभी एग्जांपल ली, या उसके पहले मैं कुछ भी दे दूंगा, ठीक है, ताकि हमें ये आसानी हो जाए। तो 4 4 एंड 4 अगर मैं दूंगा, ठीक, एंटर करूंगा मैं, रूट्स आर इमेजिनरी। तो इसने क्या किया, ये सीधा जो है इसने क्या किया, यहां तक पहुंचा, डी तो इसने कैलकुलेट किया, अब ये यहां आया, इफ डी इज लेस देन 0, हाँ वो था, क्योंकि डी हमने इसमें निकाला तो वो हो जाएगा 16 माइनस 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4, 16 into 4 is 64 आई थिंक। तो 64 32 सॉरी 16 माइनस 64, तो वो ऑब्वियसली लेस देन 0 आ जाता है। तो इसने ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, एंड देन इसके एग्जीक्यूट करने के बाद सीधा बाहर चला गया, क्योंकि उसके बाद कोई ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो सीधा ये यहां तक पहुंचा। बात समझ में आई? प्रोग्राम से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन इसके बाद इफ एल्स इफ के बाहर चला जाएगा, जो लैडर ये है इफ एल्स इफ की, उसके बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब दूसरे केस में अगर मैं अब दूंगा कि जिसमें ये होंगे रूट्स रियल होंगे, ठीक है, तो मैं ये ऐसे करूंगा, देखिए। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल गिव इट, क्या था अभी पहले, ये 1 -2 या -4 एंड 4 आई थिंक यही था, हाँ। तो इसने कहा रूट्स आर रियल, ठीक है, यहां तक पहुंचाइए। देखिए अब डी जो है हमारा वो ग्रेटर लेस देन 0 नहीं था, तो ये किस सेक्शन में चला जाएगा, एल्स सेक्शन में, तो यहां चला गया। उसमें इसने सबसे पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, रूट्स आर रियल, यहां तक, ठीक है, ये वाला सेक्शन इसने एग्जीक्यूट किया, रूट्स आर रियल। उसके बाद ये नीचे चला गया, देख रहा है इफ डी इज इक्वल टू 0, क्या ये 0 के बराबर है, हाँ ये 0 के बराबर है, ठीक है। तो इसने लिखा एंड इक्वल, उसके बाद एल्स इसका नहीं एग्जीक्यूट किया, सीधा यहां चला गया एल्स के बाहर। बात समझ में आई? क्लियर? अब अगर दूसरा तरीका भी हो सकता है, दूसरी चीज भी हो सकती है, अगर मैं आप कहूं कि कोई ऐसी एग्जांपल लूं कि जिसमें रूट्स जो है अनइक्वल हो, ठीक है, रियल हो लेकिन अनइक्वल हो। तो फॉर एग्जांपल लेट मी ट्राई टू से x इक्वल टू 3 -3 अगर होंगे, ठीक है, सो x -3 इंटू x + 3, तो ये किसके बराबर होगा, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3x माइनस 9, तो x स्क्वायर -9, यही है ना। तो अगर मैं अगर ये वाली कंडीशन होगी, ठीक, तो हम कैसे करेंगे इसको, तो मैं दे दूंगा इसको a के बदले में दूंगा 1, b के बदले हम देंगे 0 1 0 एंड c क्या है, -9 है, यही है ना। तो अगर एंटर करूंगा तो ये कहेगा अब रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो ये यहां तक पहुंचा, रूट्स आर रियल तक। उसके बाद इसने देखा डी 0 है या नहीं है, वो नहीं था, तो इस वाले इफ में नहीं चला गया, अंदर वाले इफ में, इसके एल्स में चला गया, वो एग्जीक्यूट किया एंड देन फाइनली इट केम आउट। बात समझ में आई? इस चीज को हम कहते हैं नेस्टेड इफ। क्या कहते हैं? नेस्टेड इफ, मतलब इफ के अंदर दूसरा इफ डालना। इसी तरह आप इस इफ के अंदर और इफ भी डाल सकते हो, आप जितना डीप जाना चाहो उतना डीप आप चले जा सकते हो। फाइन, किसी को कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? अब आप ऐसे वाले प्रोग्राम्स कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको यही कहूं कि चलिए रूट्स तो आपने देख लिए रियल है या इक्वल है, अब उसके बाद रूट्स को डिस्प्ले भी कराओ, क्या क्या रूट हैं। अगर ये इक्वल है तो क्या क्या रूट होंगे, अगर अनइक्वल है तो क्या क्या रूट होंगे, ठीक है। तो उसमें आप इसी यहाँ पे ही थोड़े चेंज करोगे, आप कहोगे प्रिंट रूट्स आर रियल एंड इक्वल, उसके बाद आप रूट को कैलकुलेट करोगे। वो कैसे कैलकुलेट करोगे, b स्क्वायर माइनस 4ac या प्लस, क्योंकि वो दोनों एक ही आएंगे, और यहाँ पे आप करोगे b स्क्वायर माइनस 4ac b स्क्वायर प्लस 4ac अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4a, जो भी वो फॉर्मूला है, डिवाइड बाय ट्वाइस है ना। बात समझ में आ रही है? ये करना आएगा सबको? यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? If anybody has any doubt, please raise it. Fine, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, then I will end today. और हाँ हाँ बताइए। सर रूट कैसे लिखते हैं इसमें? रूट मतलब फॉर्मूला है ना रूट निकालने की। रूट निकालने की फॉर्मूला क्या है?
सर मतलब जैसे कि -b स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस अंडर रूट ऑफ, उसके लिए आप फंक्शन यूज करोगे SQRT। ओके, SQRT एक फंक्शन है, तो उसमें आप डालोगे SQRT, फिर जिसका आपको रूट निकालना है, लेट अस से 4 का निकालना है, तो वो आपको 4 का स्क्वायर रूट देगा। बात समझ में आई? ओके, कोई कह रहा है कि नेस्टेड फिर समझाना है, ठीक है, तो मैं एक बार फिर जी, से इसको समझा देता हूँ, ठीक। सो लेट मी गो बैक टू माय नोटबुक। देखिए हमने क्या कहा कि इफ एल्स इफ का सिंटैक्स क्या है, हम कहते हैं इफ, ठीक है, इफ एल्स का सिंटैक्स, तो हम लिखेंगे इफ, उसके बाद कोई कंडीशन होगी। सर आवाज कट रही हेलो, है। अब ऑडिबल है? अगर ऑडिबल नहीं भी है तो मैं इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा लेक्चर को, एंड यू जी कैन वॉच इट। तो सिंटैक्स हमारा है इफ, कंडीशन एंड बॉडी, जी सर, अब हो गया। और देन एल्स, फिर if हो सकता है फिर से, उसमें फिर से एक और कंडीशन आ सकती है, लेट मी कॉल इट कंडीशन 1, कंडीशन 2, फिर उसकी बॉडी, है ना। इसी तरह ये चलता जा सकता है, फाइनली आपको एल्स रहेगा और उसकी बॉडी। ये सिंटैक्स है ना, यही सिंटैक्स है ना। अब जो ये बॉडी है ना, बॉडी, इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो, जो भी सी का लेजिबल स्टेटमेंट है वो आप इसमें डाल सकते हो। अगर कुछ भी डाल सकते हो तो यहाँ पे आप फिर से एक और इफ भी डाल सकते हो, इफ उसकी कंडीशन, है ना, लेट मी कॉल इट कंडीशन 1 तो उसकी बॉडी, उसके बाद इसका एल्स इफ, इसके अंदर फिर से चल सकता है, इसी तरह यहाँ पे भी चल सकता है, इसी तरह यहाँ पे भी चल सकता है। तो ये इफ के अंदर दूसरा इफ डालना, इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ। अब आई बात समझ में? तो ऊपर जो हमने प्रोग्राम किया वो हमने इसी तरह की, अदरवाइज हमने ऊपर कर लिया था, तो मैंने बस आपको ये समझाने के लिए इसको इस तरह आपको यहाँ पे ये एग्जांपल दे दी। तो हमने ऊपर क्या किया, इफ को हमने देखा, आप उल्टा भी कर सकते हो, ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं हटा दूंगा, मैं कहूंगा इस तरह, इफ d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो उस वक्त ये चीजें हैं। और फिर एल्स में मैं लिखूंगा, एल्स में मैं लिखूंगा प्रिंट एफ रूट्स आर इमेजिनरी। में आई सबको? और यहाँ पे ब्रेस क्लोज करूंगा। अब क्या हुआ कि इफ के अंदर उसकी बॉडी जो है, ये सारा चीज जो है, लेट मी हाईलाइट दिस, ये सारी चीज जो है, ये सारी बॉडी है इफ की, है ना। ये 4 स्टेटमेंट 1 2 3 4 5, ये 4 स्टेटमेंट्स जो हैं ये इफ की बॉडी बनती है। दिस इज द बॉडी ऑफ इफ। इस इफ के अंदर मैंने इस बॉडी में एक और इफ एल्स डाल दिया, सो दिस इज अनदर इंटरनल, सो दिस इज कॉल्ड एज इनर इफ, ठीक है। ये आउटर इफ है, ये इनर इफ है। तो इफ के अंदर एक और इफ भी आ सकता है। इसी तरह अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो इसके अंदर एक और इफ भी आप डाल सकते हो। ये सबको समझ आया? आप किसी को आप डाउट तो नहीं रहा? जो ये नेस्टेड इफ है ना सर, जो इसके अंदर इफ है, इफ डी हाँ। सर इक्वल टू 0, सो मतलब ये सर इसी को रिलेट करेगा, ऊपर वाले स्टेटमेंट के अंदर ही चेक करेगा। ये क्या करेगा, ये अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हुई तब जाके ये अंदर चला जाएगा। अब ये अंदर की वाली बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो उसमें फिर ये यहाँ इस पहले वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये वाला देखेगा, ठीक है। अब ये इफ ट्रीट होगा इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं हुई तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। फाइन? यस सर। हाँ, तो अब आपको करना क्या है, आपको कुछ एग्जांपल्स इसके करनी है, ठीक है। बात समझ में आई? सो हो सकता है कल हम 2-4 एग्जांपल और कर लें। मैं एक दिन आपको देना चाहता हूँ इस इफ पे, और मीनवाइल आप भी जितने एग्जांपल्स आप कर सको उतनी आप करें। कोई वेबसाइट्स देख लीजिए, कोड ये गिग्स फॉर गिग्स देख लें, या कोड की कुछ और कोड शेफ तो थोड़ी एडवांस है। कोई दूसरी एग्जांपल्स भी आप, सी ट्यूटोरियल्स एक है, या इसी तरह से वो ट्यूटोरियल पॉइंट है, उनमें आप हाँ एग्जांपल्स जितनी भी हैं उतना करने की कोशिश करिए, एंड जितना आप करोगे उतना आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है।
मीनवाइल अगर आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम होगी यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। ठीक, हाँ जी जी बताइए। सर इफ वी हैव टू राइट फॉर एग्जांपल अगर हमें लिखना होता है मतलब जब हम ऑपरेटर यूज करते हैं अगर हमें लिखना होगा इफ x बिलोंग्स टू y हम कैसे लिख सकते हैं ये? x बिलोंग्स टू y मतलब y क्या है आपका? मतलब अगर हमें पहले हम ऊपर देंगे कंडीशन x y दो मतलब दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। चलिए फिर हम आपके पास दो एक मिनट रुकिए, आपके पास दो वेरिएबल है x एंड y, अब क्या आप कहना चाहते हो? सर हम इफ मतलब फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं x ग्रेटर देन y लेस देन y ये ऑपरेशंस अगर हमें लिखना होगा इफ x बिलोंग्स टू y हम कैसे लिखते हैं? नहीं y फिर उस हिसाब से सेट होगा ना, देन y शुड बी ए सेट, तभी तो ये हो सकता है ना x बिलोंग्स टू y, ये तभी पॉसिबल है जब y एक सेट होगा, तब हम कहते हैं कि क्या ये x इस सेट का पार्ट है या नहीं, यही कहना चाहते हो ना आप? सब जब मेरा वाइवा हुआ था तो आपने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था, आपने बोला था कि आप एक प्रोग्राम लिखो आप उसमें प्रिंट कराओ यस और नो। हाँ अगर आपने बोला था इफ x बिलोंग्स टू y x और y है आपके पास इफ x बिलोंग्स टू y प्रिंट यस इफ इट डज नॉट बिलोंग टू y प्रिंट नो। नहीं, मैंने I कुछ mean- और पूछा होगा, आई डोंट थिंक मैंने ऐसा कहा होगा कि आपके पास x एक कैरेक्टर है, अगर x में y कैरेक्टर होगा, कैरेक्टर वेरिएबल x है, अगर x में y होगा तो आप यस प्रिंट कराओ अदरवाइज नो प्रिंट कराओ। मे बी आई थिंक कुछ लोगों को मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि बिलोंग्स वाला जो क्वेश्चन है इसके लिए आपको एरेज पढ़नी है, ये एरे का क्वेश्चन है, इसको कहते हैं सर्चिंग। ठीक है, ये Okay. दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको दूसरा वो वहां पर हम पहुंचेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, ये दूसरी चीज है। तो मैंने ये कहा होगा, तो ये अगर आपको करना होगा तो ये आसान है ना, तो आप क्या करोगे, कैर सी एच लिया, प्रिंट एफ स्कैन जो भी करना होगा, फिर सिंपल है, आप कहोगे इफ सी एच इक्वल टू वाई देन प्रिंट एफ यस, है ना, एल्स प्रिंट एफ नो, यही करना है ना, सिंपल। Yes, sir. हाँ, और Thank you. कोई किसी और को कोई क्वेश्चन? डरने की बात नहीं है, जितना आप क्वेश्चन पूछोगे डाउट है, किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि शायद सिली क्वेश्चन होगा या कुछ और होगा, यहाँ सारे जो है किसी को नहीं आता, समझ लो आप किसी को नहीं आता है, सब एक जैसे हैं। तो आप क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन पूछने से डरिए मत, जितना आप डरोगे उतना आप सीख नहीं पाओगे। ठीक, फाइन। तो अगर किसी को और कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आज का लेक्चर यहाँ पे ही क्लोज करता हूँ। ठीक है, तो हम कल फिर से इंशाल्लाह आगे चलेंगे। गुड, चलिए अल्लाह हाफिज।